Namaste everyone. So today's video is for all those life science students who are in graduation, post-graduation or are planning to go for PhD. And to share everything related to it, I am joined by my friend Supriya Bhardwaj. She is a PhD scholar at AIIMS Delhi in neuropathology. So let's start. Hi Sup, thank you for giving me your time. Hi Meghu, thank you so much for giving me this opportunity for a conversation like this. Yes. So we'll start with your brief introduction and your academic journey. Okay. So, hi, my name is Supriya Bhardwaj. Currently, I am a fourth year PhD student in the Department of Neuropathology at AIIMS New Delhi. I did my BSc in zoology from St. Xavier's College, Ranchi. In 2020, and then I moved for my masters in life sciences, which I completed from Mount Carmel College, Bangalore. And then for a brief period I did my JRF ship at AIIMS New Delhi, and then I continued with my PhD. तो सब लाइक सबको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक तो काफ़ी आइडिया रहता है, बट आफ्टर एमएससी बहुत लोग ऐसे क्लूलेस हो जाते हैं कि करना क्या है. सो लाइक हाउ डिड यू गॉट इनटू एम्स? लाइक वाज देयर एनी एग्जाम रिलेटेड टू इट और व्हाट प्रोसेस यू फॉलोड? Yes, Megha, right. As you rightly said, a lot of people are clueless. We also know of some brilliant minds and the ones who have already figured it out, जैसा बोलते हैं. But there are a lot of people, and I was one of them who was clueless. I was actually clueless. So मेरा ये था कि I did give a lot of exams, like which we traditionally do when we are doing an MSc, like UGC, NET, JRF. Then for TIFR I gave. There was a lot of these exams that I gave, and I qualified few of them. TIFR I qualified, JJBILS, which we call. So then I also went on for interview. Then when I was in MSc, I qualified UGC NET, but it was lecturership. So after I completed my MSc, I was not really sure that I want to do a PhD or not, because I did not get the proper exposure of lab which was required to understand what does a PhD or research takes in itself. तो ये बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, and please do not leave research or leave academics just because you're clueless what to do ahead. So I thought कि पहले I need to get an exposure. So I filled various forms. देखो जब हम MSc कर लेते हैं तो we are eligible to work as a junior research fellow. ठीक है. तो और जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलते हैं, वहाँ पे एमएससी को रिक्रूट करते हैं. ठीक है. एंड वेर यू आर पेड 37,000 प्लस HRA, मतलब हम एक बार सैलरी का भी उसका भी हम आपको आइडिया दे रहे हैं. तो आप वैसे जगह पे जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, आप वहाँ जाके आप कुछ दिन काम कर सकते हो, आप काम समझ सकते हो, ताकि आपको ये पता चले कि वो एक्चुअली आपका इंटरेस्ट है भी कि नहीं, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आप उस पूरे फील्ड को समझ रहे हो या फिर इट डज़ नॉट गो वेल विथ यू. तो आई डिड दैट. मतलब मैंने जनरली ये किया था कि आई सब्सक्राइब बायोटेक्निका, और उससे वहाँ पे हमें जनरली ज़्यादातर मिल जाते जो भी वैकेंसी अक्रॉस द इंडिया आ रही है. तो मेरे लिए कुछ जोग्राफिकल लोकेशन not a barrier, so I was in Bangalore, but I was applying pan India. So I was inclined towards clinical research, so I was applying in PGIMER, then liver and biliary institute is there. I was applying for all these, and also AIIMS New Delhi. So I applied in this department and I got an interview call. So that's how I first came to AIIMS New Delhi. You explained so well. So the next question is like now you are enrolled as a PhD scholar and doing PhD from such a renowned institution. What do you think are the benefits? Obviously, there are a lot of benefits, and first of all, I would like to say कि जैसे लोग आपके आसपास होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है. मतलब अगर कोई भी आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आप ऐसे लोगों से मिलते हो, और ऐसे आपके मतलब जो भी प्रोफेसर्स होते हैं, दे आर आई मीन द बेस्ट इन देयर वर्क, दे आर द क्रीम ऑफ द कंट्री. ओके. सो यू गेट इंस्पायर्ड, यू आर इन फ्रंट ऑफ आई वुड से अ सी ऑफ नॉलेज. ठीक है. तो आप जितना मतलब वहाँ से उनसे समझ सको, उनसे बात करके, दे आर जस्ट नॉट द बेस्ट इन आवर
countries, but they're one of the best in the world. Okay, so I've met a lot of professors and even a lot of students who are very motivated, very good at their work. So first of all, I would say that obviously there are a lot of resources in these institutes, and one of them is the human resource these institute have, और जिसके ऊपर ये इंस्टीट्यूट्स बने हैं, दे आर व्हाट दे आर टुडे. उसके बाद these the top institute also receive a lot of funding from the government. Okay, so आपको जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या जनरली बहुत सारे रिसर्च लैब में जैसे फंडिंग की थोड़ी कमी होती है, तो अगर इन सब जगह पे क्लिनिकल रिसर्च में और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आपको फंडिंग अच्छी होती है, तो जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कभी भी रिसर्च के लिए, रिसर्च करने के लिए, क्योंकि आपको इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, सब चीज़ के लिए फंडिंग चाहिए. तो फंडिंग इज़ जनरली नॉट अ प्रॉब्लम इन दीज इंस्टीट्यूट्स. यू गेट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है, जो कटिंग एज रिसर्च वर्ल्ड में चल रही है, दैट वी परफॉर्म एंड दोज आर द एक्सपेरिमेंट्स दैट वी वर्क ऑन हियर. ठीक है. Also you get exposure to various, you can attend multiple national and international conferences जहाँ आप अपना काम प्रेजेंट करते हो, उस पर सवाल आते हैं, आप डिस्कस कर सकते हो अपने क्वेश्चंस, अपने रिसर्च को, which helps you to get better in that. And yes, these are the main things which I can remember now. Yeah. Okay, so now we discussed all the positive things about this. So everything has, like सबका दो पार्ट होता है, पॉजिटिव कुछ नेगेटिव. So what do you think are the challenges you faced or you are facing currently in your journey? Yeah, so I think particularly in this journey, पीएचडी में या फिर लॉन्ग एकेडमिक करियर्स की जो चैलेंजेस हैं या फिर जो डाउन पॉइंट्स है, वो शायद हम लोग सब जानते हैं और बहुत हम लोग डिस्कस भी करते हैं, आई गेस, क्यों, बिकॉज कि इसमें आपको पढ़ाई बहुत लंबी करनी होती है. इट इज़, if you do everything on point, still it's 10 years after your school. Okay, 3 years of undergrad, then masters, and then at least 5 years of PhD if you do everything on time, or it can take obviously longer. ठीक है, तो there's a lot of time that you need to invest in this field first of all. And जैसे कि PhD या research, I truly believe that research is a very noble pursuit. Okay, so there's a lot of hard work, dedication, persistence, all of that is needed, because you do not get rewards or results very quickly. You need to be persistent about it. And also अगर हम financial terms के बारे में भी बात करेंगे, तो भी the amount of hard work that you need to put in, it is not equated by the output in terms of the monetary compensations that you are provided for this. Okay, till we are in PhD, we are on fellowships, so which are actually quite low to the number of hours that you need to put in, and obviously the private standards or anything like that. जब हम मास्टर्स करते हैं तो हमें ये लगता है कि consolidated of 45,000 is really good, what we get as a JRF compared to the industry which are giving 20,000. So that time it's very lucrative, but you need to understand that this will be around this money for the next 5 years, and when you come out of this, you need to start as a fresher 30 अराउंड. ठीक है, तो ये है 28-30 जो भी होता है. तो ये है कि आपको पहले बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि मेरे को इतना टाइम इस चीज़ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, इफ़ आई एम मोटिवेटेड एनफ और नॉट, बिकॉज एज PhD इज़ द हाइएस्ट academic degree, it takes everything out of you. ठीक है, every day when I come from the lab, no one wants to, मतलब you need to, मतलब आपको पढ़ाई पसंद होनी चाहिए, आपको चीज़ों को खोजना पसंद होना चाहिए, आपको कुछ पढ़ रहे हो उसमें देखना व्हाट आर द रिसर्च गैप्स, ये सब आपको एक्चुअली क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. बाकी अगर ये सारी चीज़ें हैं तो देन यू कैन पुल इट ऑफ. या मतलब कि एक तरीके का क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें टाइम देना चाहते हो या नहीं, इतना पढ़ना चाहते हो या नहीं. तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसीजन लेने के लिए. ओके, सो काफ़ी हम सुनते आ रहे हैं विद मतलब अबाउट AI एंड द कोडिंग, ऑल दिस इज न्यू टेक्नोलॉजीज. So what do you think, what are the skills one has to have to advance in this career option? सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इज़, देखो, एक्सपेरिमेंट वगैरह ये सब लोग सीख जाते हैं. ठीक है, मतलब ये आपको बस इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग, तो वो आप सीख जाओगे. कितना भी एडवांस्ड आपको एक्सपेरिमेंटेशन हो कि आप
मतलब DNA सीक्वेंसिंग कर रहे हो, DNA मिथाइलेशन प्रोफाइलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप वो सारी एक्सपेरिमेंट्स आप सीख जाओगे, ठीक है। एक बेसिक स्किल जो चाहिए, कम टू AI एंड एवरीथिंग, बट जो बेसिक स्किल आपको चाहिए, यू नीड टू हैव द स्किल टू रीड रिसर्च पेपर्स, ठीक है। मतलब इट्स 70% ऑफ द टाइम इट इज़ दैट यू नीड टू नो वॉट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड एंड एवरीथिंग। कुछ भी आप नया, कोई भी स्टार्ट से नया नहीं होता, उसके बारे में लोगों ने बहुत टाइम पहले से लोग पढ़ रहे हैं और लिख चुके हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को पढ़ना आना चाहिए आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट रीडिंग रिसर्च पेपर इज़ अ स्किल, और you need to develop. It's not a skill we have, but we need to develop that. Two, I would say that you need to be really good in biostatistics. Okay, मतलब हमें you need to learn and you need to understand biostatistics in terms to understand your data. And as you said कि अभी we all know that data is the actual currency now, and NGS और ये सारी चीज़ हम not just for research, we are thinking, we are trying to bring it, and a lot of companies are trying to bring it in routine medical and clinical practices. तो ये हमें समझ में आ रहा है कि डेटा तो बहुत जनरेट कर रहे हैं हम, ठीक है। RNA सीक्वेंसिंग हो गया, DNA सीक्वेंसिंग हो गया, एपिजेनेटिक्स हो गया, सबसे, बट द रियल थिंग इज़ हु अंडरस्टैंड्स द डेटा एंड हु कुड एनालाइज द डेटा। तो आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी आपको, यू कैन नॉट स्किप, इवन if you are a core biology researcher, you need to have and you need to overlap your skills. Okay, आपको bioinformatics आना ही पड़ेगा, and obviously all of this has been very easy, not very easy, but yeah, एक तरह से it is really being facilitated by AI. You can go through multiple databases, programming languages with the help of AI, which was really difficult before. So use AI in the it really helps you in the most constructive ways, and yeah. Okay, so like you talked about the biostatistics related to it or bioinformatics. So क्या मतलब कुछ ऐसा कोर्स या फिर कुछ ऐसा पर्टिकुलर चैनल जिससे मतलब लोग सीख सके प्रायर टू लाइक इनरोलिंग टू PhD? So there are a lot of courses like BSc and MSc in bioinformatics भी होता है. You can get enrolled into these courses. मतलब अगर आप ट्रेडिशनल zoology या botany से नहीं करना चाह रहे हो या बायोटेक्नोलॉजी से, तो ये सारी भी प्रॉपर BSc और MSc की कोर्सेज हैं, तो आप उसमें enroll कर सकते हो. There are a lot of online courses available on Coursera to learn programming languages like R, BioPython, etc. You can go about those. और also कि आपको जब आप ट्रेडिशनल रिसर्च कर रहे हो तब तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही, बट ऑल्सो आप अब अपना करियर AI और बायोइन्फॉर्मेटिक्स ड्रिवन PhD या उन लैब्स में भी आप जा सकते हो, ठीक है, बिकॉज दैट्स द फ्यूचर. ओके, सो वहाँ पे आपको हो सकता है कि यू विल नीड टू इन्वेस्ट a couple of less years there, like 3 or 4 years, and you get a better hold of things in bioinformatics and AI. After PhD, what's your plan? Like कि इंडिया में ज़्यादा एक्सपोजर है और इफ़ यू वांट टू सेटल अब्रॉड? ओके, दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट आई पॉन्डर अपॉन अ लॉट, और इसका एक्चुअली तो आंसर नहीं पता है मेरे को कि क्या है, बट या आई हैव मेड माई माइंड इन एटलीस्ट फॉर 2 points. ओके, आई विल बी अप्लाइंग फॉर पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड, मेनली इन यूरोप, क्योंकि मेरा जो काम है दैट इज़ द यूरोप एंड जर्मनी इज़ द हब वेयर इट हैज़ ऑल स्टार्टेड एंड इट इज़ रियली गेनिंग अ लॉट ऑफ पेस देयर. सो आई विल बी अप्लाइंग फॉर पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आई डू नॉट वॉन्ट टू बी ओनली रिस्ट्रिक्टेड and have my skills in the academia background. I also want to develop my skills that I am job ready and I'm industry ready. So I want to, and I will also advise anyone who's listening to this video that आप अगर PhD करते हो तो आप ये भी ध्यान में रखो, जस्ट ये नहीं कि मैंने इतनी बड़ी डिग्री ले ली तो लोग मुझे एम्प्लॉय कर देंगे. आपको एम्प्लॉयबल होने के लिए ऐसी स्किल्स चाहिए होगी जो कि इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है, जिसके लिए लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं. कोई आपको पेपर पढ़ने के लिए, शायद डायरेक्टली अगर हम सोचें तो पेपर पढ़ने के लिए कोई पैसे नहीं देगा, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो अ स्किल एंड यू आर डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड डूइंग एवरीथिंग. बट आप देखो कि क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ क्या स्किल्स लग रही हैं, क्या NGS डेटा एनालिसिस है, क्या वेरिएंट कॉलिंग के लिए लोग वो कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए लोग हायर कर रहे हैं. तो यू ऑल्सो नीड टू बी रेडी, एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट. आई एम ट्राइंग टू बी लाइक ऑल्सो बी जॉब रेडी, जस्ट नॉट बी focusing my all the time and strength on academia. So yeah. Yeah, you rightly said कि employability is the big thing, कि skills ये सब होना काफ़ी ज़रूरी है. तो the next thing is कि what are the do's and don'ts you'd like to suggest if anyone wants to enter into this field?
Okay, so if someone who has just done their 12th or is in 11th and 12th and thinking of some other courses in biology, so apart from MBBS and these things, so I would suggest that आप अगर ये करना चाहते हो तो आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज को टारगेट कर. देयर आर मैनी बिग ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाइक आईसर विच ऑफर यू इंटीग्रेटेड BSc इन MSc. ठीक है, तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके एक आध साल बच जाएंगे. ठीक है, और अगर इंटीग्रेटेड कोर्सेज रहता है और अच्छी यूनिवर्सिटी रहती है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है. आपको बार बार एग्जाम्स नहीं देना होगा, बार बार आपको उस हसल में नहीं पढ़ना होगा, एंड दैट इज़ बेटर आई गेस. उनका कोर्स एंड करिकुलम भी बेटर फॉर्मुलेटेड होता है टू मेक यू अ बेटर रिसर्चर. ओके, अगर आप BSc के बाद ये सोच रहे हो, BSc में सोच रहे हो कि मेरे को आगे क्या करना है, तो आप यार इंटीग्रेटेड MSc PhD के लिए ट्राई करो. IASC हो गए या NCBI हो गए, इन सब जगह पे इंटीग्रेट आई वुड सजेस्ट. एंड जो मेरे को अपने जर्नी से समझ आया कि यू शुड गो फॉर इंटीग्रेटेड कोर्सेज रादर देन गोइंग फॉर स्टैंड अलोन कोर्सेज. ऑल्सो अगर आप BSc के बाद बाहर जा सकते हो, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटीज़ दैट आर आउटसाइड इंडिया. वहाँ पे यू गेट ऑब्वियसली मच बेटर एक्सपोजर, फैसिलिटीज़ बेटर होते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी आपको ज़्यादा मिलती है. तो ट्राई टू, इफ़ यू कैन एंड इफ़ यू वांट टू, ट्राई टू अप्लाई अब्रॉड for MSc and also for PhD if you want. Obviously PhD if you want, and if you get outside, it's the best thing you can. And don'ts में हर सबकी अपनी जर्नी होती है, तो ऑब्वियसली आप वो चीज़ कर सकते हो. बट जो एक चीज़ मेरे को समझ में आया, जो मैंने अपने आसपास देखा है, वो ये है कि MSc के बाद बहुत टाइम बच्चे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में रह जाते हैं. ठीक है, यू आर ऑब्वियसली गेटिंग 40-45,000, तो आपका अपना तो काम अच्छे से चल जाता है, एंड दैट्स अ मनी दैट यू कैन सस्टेन इन एनी सिटी ऑफ आवर कंट्री. लेकिन आप मतलब 1 साल 1.5 साल जितने दिन आपने एक्सपोजर जो आपको चाहिए था वो ले लिया, उससे ज़्यादा आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स में मत वो करो. अगर आपको इस फील्ड में रहनी है तो चाहे आप कहीं से भी PhD में इनरोल करो, PhD में घुसने का ट्राई करो. अगर आपका एम है कि आप बाहर जाना है आपको और आप तब तक रिसर्च प्रोजेक्ट्स में हो, वेल एंड गुड. आप उसके लिए एप्लीकेशंस करते रहो और जितनी जल्दी हो सके रिसर्च प्रोजेक्ट से निकल के. ऑब्वियसली दैट्स एन एक्सपीरियंस, बट दैट इज़ एन एक्सपीरियंस एंड दैट इज़ नॉट एडिंग टू योर, और आप नॉट एडिंग टू योर एक्चुअल डिग्री वाला थिंग. तो आपको डिग्री में लेने में फिर और टाइम लगेगा. तो आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा टाइम रिसर्च प्रोजेक्ट्स में नहीं रुकना. So now we are approaching towards the end of the video. So one piece of advice you want to give to the students. So I would suggest कि ये जो हमारे स्टूडेंटशिप वाले जो ईयर्स होते हैं, सो एक्सप्लोर एंड ट्राई एवरीथिंग दैट यू वांट टू एंड दैट यू कैन. ठीक है, यू डू नॉट नीड टू बी द बेस्ट इन इट, बट आई वुड सजेस्ट कि बाहर देखो, दुनिया में कितनी सारी चीज़ें सीखने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं. एंड ऑब्वियसली विद इंटरनेट एट आवर डिस्पोजल, दैट हैज़ नाउ बिकम सिग्निफिकेंटली ईजियर. तो गो आउट, एक्सप्लोर, कहीं भी इंटर्नशिप्स लेना है, कोल्ड ईमेल्स करने हैं, पता करो कि जिस फील्ड में रिसर्च करना है उसके टॉप 5 बेस्ट साइंटिस्ट कौन है हमारी कंट्री के. ठीक है, उनको भाई ईमेल भेजो. अगर उन्हें दे डू रिस्पॉन्ड टू ईमेल्स. और अगर आप ऐसे सिटीज़ में हो जहाँ उनके लैब्स हैं, तो गो एंड मीट द साइंटिस्ट. दे आर मोस्टली वेरी वेलकमिंग टू स्टूडेंट्स. ओके, तो डू नॉट हेजिटेट. अप्रोच पीपल ऑन लिंक्डइन, अप्रोच पीपल. दैट इज़ द ओनली वे you could make connections, network in this field and get the best and land in the best possible places. And one more thing I would tell you कि know the time by when you need to be financially independent. ठीक है, and plan your things accordingly. And at last I would want to say कि ज़्यादा सोचना नहीं, क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा. तो विद दैट वी कैन गो ahead and live our lives. So like you addressed all the question with so much clarity. So thank you for giving me your time again. Thank you so much, Megha, and it was really a nice and fun conversation, and I hope that it is engaging enough for your viewers also. Also, I would want to add that anyone here on Megha's channel, I would want to vouch for her, and I also, apart from knowing her professionally, I also know her personally. So this channel, apart from anything else, would always provide you something meaningful for your life. So yeah. आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.